بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سیدھی تصویر دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہم امروہہ میں موجود ہیں۔ امروہہ کی درگاہ خاکی کاظمیہ اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ بہت اہم خانوادہ ہے، کاظمی سادات ہیں، کاظمی سلسلے کے بہت عظیم بزرگ ہیں۔ اگر ہم نسب کی بات کریں تو حضرت امام موسیٰ کاظم کا سلسلہ ہے، اور اسی طرح سے روحانی سلسلے کی بات کریں تو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگ ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت شام کا یہ خوبصورت منظر ہے۔ امروہہ بڑی روحانی بستی ہے، بڑی تاریخی بستی ہے۔ کسی زمانے میں یہ ریاست ہوا کرتا تھا امروہہ، اور اسی صوبے کے اندر بہت سارے علاقے آتے تھے۔ اس پورے خطے کی اگر ہم بات کریں تو امروہہ بڑا زرخیز رہا، ہر اعتبار سے روحانی شخصیات نے بھی یہاں پر جنم لیا، حکامہ کا بھی ایک بڑا قافلہ یہاں پر پہنچا۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے خانوادے اس امروہہ میں آرام فرما رہے ہیں، اس امروہہ میں بہت سارے خانوادے موجود ہیں۔ تو امروہہ کی تاریخ جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ امروہہ کتنا تاریخی شہر ہے، اور اسی تاریخی شہر میں کاظمی سادات بھی آرام فرما رہے ہیں۔ یہ جو آپ کی اسکرین پر آستانہ ہے، یہ حضرت سید محمد خلیل کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، اور اسی آستانے کے کیمپس میں بہت عظیم شخصیات آرام فرما رہی ہیں، اور اسی سلسلے کے بہت عظیم بزرگ ملتان میں آرام فرما رہے ہیں، جن کو غزالی زماں حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ حامد سعید کاظمی مدظ اللہ العالی انہی کے شہزادے ہیں جو ملتان میں اس وقت موجود ہیں، اور وہاں دین کی تبلیغ اور ارشاد کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ کا سلسلہ ہو، اگر آپ حضرت سید محمد خلیل کاظمی یا اس خانوادے کی نسبت رکھتے ہوں تو ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا۔ اس سلسلے کے جتنے بھی بزرگ ہیں یہاں پر، اس آستانے میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی بھی زیارت ہم آپ کو کراتے ہیں۔ ساتھ ہی جس مسجد کی چھت پہ ہم کھڑے ہو کر آپ سے بات کر رہے ہیں، یہاں پرانی خانقاہ ہے، ان کے آستانوں کی بھی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ پوری ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اس خانوادے کے جو شہزادے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ جناب سید محمد صدیق الامین کاظمی صاحب ہیں، حکیم صاحب ہیں، اسی طرح سے حکیم مولانا سید لقاء الامین کاظمی صاحب ہیں۔ آئیے ہم مسجد کا جو یہ خانقاہ ہے اس کی بھی آپ کو زیارت کراتے ہیں، جو پرانی خانقاہ ہے، اور ساتھ میں اس آستانے کے اندر جتنے بھی بزرگ آرام فرما رہے ہیں ان تمام بزرگوں کی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات جانیے، کیونکہ صوفیاء کرام کا سلسلہ بہت پرانا سلسلہ ہے، اور بزرگوں نے تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دیا، تو جب آپ کتابوں میں تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ امروہہ مدینۃ الاولیاء ہے، اولیاء کی بستی ہے۔ صوفیاء کرام بڑی تعداد میں امروہہ میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن جس طرح سے ہمیں اپنے بزرگوں کی تاریخ کو جاننا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں اس میں لاپرواہی بہت ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ صوفیاء کرام کے بارے میں لوگ جانیں، اور جن لوگوں نے ہم پر احسان کیا اور سب سے بڑی دولت جن کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، ہم ان کے احسان مند بھی بنیں، اپنے بزرگوں کو بھی یاد کریں، اور ساتھ ہی ان کی جو تاریخ رہی ہے، ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے، اس اسٹریٹجی کو بھی ہم فالو کریں، تاکہ جس طرح سے صوفیاء کرام نے سماج میں ہم امن اور ہم آہنگی پیدا کی، جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو آستانہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت سید ضیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ یہ نقشبندی سلسلہ بھی یہاں تک پہنچا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ خلیفہ بھی ہیں۔ تو یہ سید ضیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر تمام مزارات ہیں، یہ اسی خانوادے کے تمام بزرگوں کے مزارات ہیں، جن کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے۔ اب آئیے دوسری خانقاہ کی طرف چلتے ہیں، جہاں پر اس سلسلے کے بہت سارے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں۔ پہلے تو یہ مسجد آپ دیکھ لیں، یہ جو مسجد ہے اس کو مسجد ضیفیہ کہا جاتا ہے۔ سید شاہ ضیف اللہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ہی یہ مسجد تعمیر کی تھی، مگر اب یہ نئے سرے سے تعمیر ہو گئی ہے۔ تو یہ مسجد ضیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، حضرت ضیف اللہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی نام سے ہے۔ تو اب آستانے کی طرف چلتے ہیں، اور اس میں آپ کو دکھاتے ہیں بہت سارے بزرگوں کے مزارات ہیں جو اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ چونکہ اس پورے خطے میں پھیلا ہوا ہے، اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بہت سارے بزرگان دین اس پورے خطے میں آرام فرما رہے ہیں، یعنی امروہہ اور آس پاس کے علاقے میں، کیونکہ یہیں سے کلیر شریف بھی بڑا قریب ہے، تو کلیر شریف کا جو فیض ہے وہ بہت عام ہے، اور یہاں بڑی تعداد میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگان دین بھی آرام فرما رہے ہیں۔ تو اب آپ کی حاضری ہم کرا رہے ہیں درگاہ اشرفیہ خاکی کاظمیہ رحمۃ اللہ علیہ میں۔ آئیے حاضری کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو تمام مزارات کے حوالے سے ڈیٹیل بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کی اسکرین پر آستانہ ہے، یہ سید شاہ نور الامین کاظمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ماضی قریب کے بزرگ ہیں۔ نام یہاں
पर लिखा हुआ है हज़रत मौलाना सैयद नूरुल अमीन शाह काज़मी खलीली चिश्ती साबरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। तो चिश्ती साबरी भी हैं और कादरी सिलसिला भी है और साथ में नक्शबंदी भी है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया, सैयद शाह ज़ैफुल्लाह को हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना शहीद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफत अता फरमाई थी। हक़्क़ुल लिसान आपका लक़ब था, यानी हज़रत नूरुल अमीन काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह का मामला ये था कि बड़ी बेबाकी थी, बड़ी जुर्रत और बहादुरी थी और सच बात कहने में कहीं भी झिझक महसूस नहीं करते थे। इसी हवाले से हज़रत सैयद शाह नूरुल अमीन काज़मी साहब जाने जाते हैं और सैयद शाह नूरुल अमीन काज़मी साहब के ही ये शहजादे हैं हकीम सैयद सिद्दीक़ुल अमीन काज़मी साहब। और सैयद शाह नूरुल अमीन काज़मी साहब की तरबियत ये रही कि खानकाह को और खानकाही मामूलात को अपना प्रोफेशन ना बनाया जाए, बल्कि अपनी हिकमत के ज़रिए अपना जो मामला है, जो घरेलू अखराजात हैं, वो अपनी हिकमत के ज़रिए चलाए जाएँ। तो ये काम अंजाम दे रहे हैं हकीम सैयद सिद्दीक़ुल अमीन काज़मी साहब, जो अपना मतब चलाते हैं चंडीगढ़ में, और हमने इंटरव्यू इनका भी किया था और आप जानते होंगे। और इसी तरह से ये हकीम सैयद लिकाउल अमीन काज़मी साहब हैं जो जामिया नईमिया मुरादाबाद से फारिग हैं और साथ में अपना मतब भी चलाते हैं और जो खानकाह के मुरीदीन हैं उन तमाम मुरीदीन से मुलाकात भी करते हैं और उनके जो भी रूहानी मसाइल हैं उन मसाइल का हल भी करते हैं। आपसे बात भी सुनेंगे, लेकिन ये पहले आप आस्ताना देख लें। ये है आस्ताना हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद खलील काज़मी खाकी चिश्ती साबरी कादरी मुहद्दिस अमरोहा भी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े बुजुर्ग थे अपने ज़माने के और ये हज़रत सैयद मोहम्मद खलील काज़मी को मुहद्दिस अमरोहावी भी कहा जाता है। आप ऊपर जो अलक़ाबात हैं वो देख रहे हैं, क़ुतबतुस सालिकीन, ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन, ख्वाजा सिराजुद्दीन, ख़ातिमुल मुहद्दिसीन, अल्लामा सैयद मोहम्मद खलील काज़मी साहब, जो यहाँ पर यानी अमरोहा में एक बहुत पुराना मदरसा है दारुल उलूम मोहम्मदिया हनफिया शाही चबूतरा, उसके बानी हैं हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद खलील काज़मी। ये जो आस्ताना आप देख रहे हैं, ये इस खानवादे के सबसे पहले बुजुर्ग हैं हज़रत सैयद मीर मोहम्मद अशरफ साहब। और जब नादिर शाह दुर्रानी ने जब हमला किया था दिल्ली पर, उस वक्त मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी जो मुग़ल हुक्मरान था। तो मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में नादिर शाह दुर्रानी ने हमला किया था। चूँकि वो ईरान से ताल्लुक़ रखता था, तो उसने जब दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया तो बहुत सारे लोगों को शिया मसलक इख्तियार करने पर, शिया मज़हब इख्तियार करने पर मजबूर किया था, जिसकी वजह से अहले सुन्नत वल जमात के हज़रात ने दिल्ली से हिजरत कर ली थी। तो ये जो सैयद मीर मोहम्मद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये भी उसके जुल्म का निशाना बने थे और ये 1688 की बात है। तो उस ज़माने में जब नादिर शाह दुर्रानी ने दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था और लोगों को अपना अक़ीदा और मसलक बदलने पर मजबूर किया था, तब हज़रत अल्लामा सैयद मीर मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने हिजरत कर ली थी और दिल्ली से अमरोहा तशरीफ़ ले आए थे। और हज़रत सैयद मीर मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह फिर अमरोहा में ही आराम फरमा रहे हैं। तो इस खानवादे के बुज़ुर्गों में सबसे पहले अमरोहा में तशरीफ़ लाने वाले ये हज़रत मीर सैयद मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह हैं। और ये इन्हीं के खानवादे के ये हज़रत की बीवी अहलिया का मज़ार मुबारक है और ये बहू का मज़ार मुबारक है, यानी हज़रत सैयद मीर मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के जो शहज़ादे थे ये उन्हीं की बहू थी। तो ये तमाम आस्ताने यहाँ पर मौजूद हैं और मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये हज़रत सैयद मीर मोहम्मद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। इनका आस्ताना ये है सैयद मीर मोहम्मद अशरफ साहब, जो हज़रत मीर मोहम्मद अशरफ जो इस खानवादे के पहले बुजुर्ग हैं अमरोहा में, उनके बेटे हैं सैयद शाह सैफुल्लाह काज़मी साहब और इन्हीं के बेटे हैं हज़रत सैयद शाह ज़ैफुल्लाह काज़मी साहब। और फिर हज़रत अल्लामा मोहम्मद खलील मुहद्दिस अमरोहा भी रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिला बहुत आगे बढ़ा और चिश्ती साबरी खानका जो है वो यहाँ से फिर आगे बढ़ती है। सैयद लिकाउल अमीन काज़मी साहब हमारे साथ हैं, जनाब सैयद सिद्दीक़ुल अमीन काज़मी साहब भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने माशाअल्लाह खानकाही निज़ाम किसी न किसी तरीके से अपने यहाँ ज़िंदा रखा हुआ है और साथ ही आपका जो तरीक़ा है अपने मुरीदीन के साथ में वो बहुत जो है सराहनीय है। और मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं कि आपने इसको तिजारत नहीं बनाया बल्कि खिदमत की गरज से आप ये तमाम काम करते हैं, इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। खानवादे का तारुफ आप फरमा दें सैयद लिकाउल अमीन काज़मी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आस्ताना हज़रत ख़ातिमुल मुहद्दिसीन हज़रत ख्वाजा सिराजुद्दीन सैयद मोहम्मद खलील काज़मी मुहद्दिस अमरोही रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है और ये चिश्तिया, साबरिया, कादरिया और नक्शबंदिया सिलसिले से ताल्लुक़ रखता है। आप अमरोहा में
मुहद्दिस अमरोही के नाम से मशहूर मारूफ हैं। ख़ानदान काज़िमिया के बुज़ुर्गों में इनका शुमार होता है। हज़रत ने यहाँ पर बहुत ही इल्मी कारनामे अंजाम दिए। आपके शागिर्द हिंदुस्तान बैरूनी मुल्कों में भी बहुत दूर दूर तक आपके शागिर्द मौजूद हैं और उनके शागिर्दों ने भी बहुत आपके कारनामे जो आपने अंजाम दिए हैं इस्लाम के मुताल्लिक और दीनी, तो वो दूर तक खिदमत अंजाम दिए हैं। और ये बताइएगा कि जो चिश्ती साबरी सिलसिला है, यानी हजरत अल्लामा खलील अहमद मुहद्दिस अमरोही रहमतुल्लाह अलैह का जो ये चिश्ती साबरी जो निस्बत है, ये कहाँ से यहाँ तक पहुँची? ये चिश्तिया सिलसिला जो है हजरत मूसा मानकपुरी रहमतुल्लाह अलैह से हजरत गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके खलीफा हुए हजरत मुख्तार अहमद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, फिर उनके खलीफा हुए दादा हुजूर हजरत मूसा मानकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जो खलीफा हैं हजरत शाह अमानत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो तशरीफ लेकर आए अमरोहा और यहीं पर इनका क़याम भी है और घर भी आपका यहीं पर है। यहाँ पर और आपकी दर्सगाह थी, खानकाही दर्सगाह, यहाँ पर लोगों को तालीम दिया करते थे। फिर आपने हजरत शाहजी गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह को अपने दस्ते पर बैत किया, उनको खिलाफत जानशीनी से नवाजा। फिर हजरत शाहजी गुलाम हैदर रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मुख्तार अहमद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत से नवाजा और अपने हाथ पर बैत फरमाकर इनको अपना जानशीन मुकर्रर किया। फिर हजरत मुख्तार अहमद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर सैयद मोहम्मद खलील काज़मी मुहद्दिस अमरोही रहमतुल्लाह अलैह को दस्त पर बैत किया और इनको अपना जानशीन मुकर्रर फरमाकर यहाँ पर दीनी खिदमत को अंजाम देने के लिए यहाँ मुकर्रर फरमा दिया। ठीक ठीक। तो ये सिलसिला आगे बढ़ा। अल्लामा हामिद अहमद सईद काज़मी साहब से क्या रिश्ता है इस खानका का? हजरत गजाली उज़्ज़मा मौलाना अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह हजरत सैयद मोहम्मद खलील काज़मी मुहद्दिस अमरोही रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई हैं और आपको हजरत सैयद मोहम्मद खलील काज़मी यानी कि दादा हुजूर अपने जान और दिल से अजीज रखा करते थे, बहुत मोहब्बत किया करते थे इनसे और आपको अपना खास शागिर्दों में इनका इंतखाब फरमाया और अपनी खिलाफत से इनको नवाजा। और उन्हें आज जो सिलसिला चिश्तिया है आज जो फेमस है वो हजरत गजाली उज़्ज़मा मौलाना अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह की बदौलत खलीलिया सिलसिला ये आपसे ही फेमस हुआ। और फिर आपके साहबजादे हजूर सैयद नूरुल अमीन काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस सिलसिले को फ़रोग़ दी। जी, अब वहाँ पर गजाली उज़्ज़मा मौलाना अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने और इनके साहबजादे जो हैं हजरत मदद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, आप आपके जानशीन हैं हजरत अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, फिर आपके ताहिर सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह, अरशद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत अरशद सईद काज़मी। तो इस खानवादे में और भी बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो आराम फरमा रहे हैं और पाकिस्तान में मुल्तान में बहुत सारे जो मशाइखीन हैं अभी भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये पूरा सिलसिला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिलसिले चिश्तिया साबरिया का पूरा जो है शिजरा यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तमाम ही नाम इसमें हजरत सैयद नूरुल अमीन काज़मी से लेकर मौलवी सैयद मोहम्मद खलील काज़मी, मौलवी सैयद मुख्तार अहमद काज़मी, हाफिज सैयद मोहम्मद यूसुफ अली काज़मी, इसी तरह से तमाम नाम मौजूद हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचते हैं। तो शिजरा यहाँ पर मौजूद है जिसको आप पढ़ सकते हैं। सिद्दीकुल अमीन काज़मी साहब, तमाम लोग जो मुल्तान में भी हैं और यहाँ भी हैं, किस तरह से तमाम खिदमत अंजाम दे रहे हैं खानकाही? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार अशरफ साहब जी, आपने इस खानवादे को रूबरू कराया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और ये खानवादा जो हुजूर अल्लामा खाकी रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्तगी रखता है और हज़रत अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्तगी रखता है, इस खानवादे की शाख जो है मुल्तान शरीफ में भी है। तो मैं ये बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो है आपने इस खानवादे को अपने चैनल के ज़रिए जो है हम सब तमाम अवाम उन्नास तक पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का। अल्लाह ताला आपकी उम्र में और इल्म में बरकत अता फरमाए। तो ये खानकाहे काज़मिया है, दरगाह खाकी काज़मी आप ऊपर देख रहे हैं। ये
बड़ी खूबसूरत दरगाह है, बहुत रूहानी आस्ताना है। तमाम ही बुजुर्ग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। आप अगर अमरोहा से ताल्लुक़ रखते हैं, अमरोहा कभी आते हैं, तो इस आस्ताने पर भी ज़रूर हाज़िरी दीजिए। हमारे लिए भी दुआ करिए, अपने लिए भी दुआ करिए। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह के वलियों से निस्बत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये कुरान मजीद में मौजूद है। सूरह कहफ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि निस्बत का फ़ायदा कितना होता है। निस्बत का फ़ायदा इतना होता है कि अगर किसी कुत्ते को अगर निस्बत हो जाए औलिया अल्लाह से, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका जिक्र कुरान मजीद में फरमाता है। और फिर वो असहाबे कहफ के कुत्ते का मकाम क्या है। जो लोग सूरह कहफ पढ़ते हैं वो ये बात बहुत बखूबी जानते हैं। तो हमारे ऊपर तो ज़्यादा लाजमी है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो अल्लाह के नेक बंदों से अपना रिश्ता जोड़े रखें, अल्लाह के नेक बंदों से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लें, क्योंकि वसीले हर जगह चलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुरान मजीद की आयत के मुताबिक कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करो। तो ये वो वसीले हैं जिनके बारे में कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास सादिकीन, के ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के साथ रहने का हुक्म दिया गया। उसी तरह से ये भी दुआ फरमाई गई। अल्लाह ने सलीका सिखाया अपने बंदों को, दुआ किया करो वतवफ़ना माल अबरार, के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें नेकों के साथ में फौत फरमाए। इसी तरह से जब मरने के बाद में गढ़ने की बात आए तो अल्लाह ने यह भी सलीका सिखाया कि दुआ किया करो अलहिक़नी बिस्सालिहीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारा इल्हाक़ नेक लोगों के साथ में कर दे। तो हमारा ये सिलसिला बुजुर्गों की बारगाहों में हाज़िरी का और सूफिया किराम के तारुफ का इसीलिए है ताकि उम्मत का जो कमज़ोर रिश्ता है औलिया अल्लाह से वो मजबूत हो जाए। और अगर जो लोग सूफिया किराम से अक़ीदत रखते भी हैं तो वो बुजुर्गों के बारे में जानते बहुत कम हैं। जानने के बाद में जब हाज़िरी देंगे तो दिलचस्पी और मज़ा दोनों बढ़ जाएगा। तो इस लुत्फ़ को बढ़ाने के लिए बुजुर्गों के बारे में जानें। जहाँ आप हाज़िरी दे रहे हैं उनकी सीरत के बारे में, उनकी हयात के बारे में, उनके कारनामों के बारे में जानें, उनके शिजरे के बारे में, उनकी करामतों के बारे में जानेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ और बढ़ जाएगा और इन बुजुर्गों से अक़ीदत में इजाफा होगा और फिर इनका फैज़ान आप पर ज़्यादा जारी होगा। तो इसलिए हमारी कोशिश है और इस कोशिश में आप लोग भी हिस्सा बन सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग हमें शेयर करते हैं, ये वीडियो शेयर करते हैं, जो लोग भी देखते हैं, तमाम लोगों का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, सबकी नस्लों में औलिया अल्लाह की अक़ीदत और मोहब्बत जारी रखे और तमाम लोगों को औलिया अल्लाह का वफ़ादार बनाए। ये दुआ है हमारी। आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मिशन को कबूल फरमा ले और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मोहब्बत का, प्यार का, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत का, अक़ीदत का ये पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आप भी इस वीडियो को शेयर करके इस मिशन का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम। इस खानका के हवाले से या मुल्तान की खानका के हवाले से या हज़रत अल्लामा अहमद सईद काज़मी के हवाले से कोई भी वाक़या आपको पता हो या किसी भी बुजुर्ग के हवाले से आप कुछ भी जानते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ में साझा किया करें। हमारी मालूमात में भी इजाफा होता है। फिर इंशाल्लाह किसी न किसी मौके से आपके शेयर किए हुए, बयान किए हुए वाक़ये को हम किसी न किसी वीडियो का हिस्सा बना लेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।